Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Kohar Publishers. This is Hamna bint Shahzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज मोहम्मद अली जिना. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन. मोहम्मद अली जिना, जैसे कि हम सब जानते हैं, मोहम्मद अली जिना इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. तो अब देखते हैं कायदे आजम. कायदे आजम का मीनिंग क्या है? जैसे कि मोहम्मद अली जिना को हम कहते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिना. तो कायदे आजम का मतलब क्या है? कायदे आजम का मतलब है कि एक ऐसा लीडर जो कि बहुत अजीम था. कायद मीन लीडर एंड आजम मीन अजीम, तो इसका मतलब हुआ ग्रेट लीडर. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम स्टेट्स इन द वर्ल्ड. इट इज द रिजल्ट ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना's untiring efforts that he united the Muslim of the subcontinent under the Muslim League banner and carved out Pakistan. Quaid-e-Azam was the selfless leader who was the real benefactor of his people. Muhammad Ali Jinnah combined in himself are the rare gifts of sincere heart and a high intellect. Recognizing his brilliant and brave leadership, Muslims called him their Quaid-e-Azam, mean great leader. The establishment of Pakistan brought great responsibilities on his shoulder. As the head of the Pakistan government, he had to build the newly born state from scratch. His strong will and administrative ability enabled the new state to overcome its initial difficulties with a short span of 1 year. Pakistan had displayed his financial as well as administrative stability. Quaid-e-Azam laid the greatest stress on the financial stability of Pakistan. He worked out a sound economic policy, established an independent currency and a state bank for Pakistan. Quaid-e-Azam was a leader of very considerable foresight. He had realized that provincialism was the greatest threat to the solidarity of the country. He warned his people, have you forgotten the lesson that was taught to us 1300 years ago? What is the use of saying we are Bengalis, Sindhis, Pathans or Punjabis? No, we are Muslims. You belong to a nation. You have carved out a territory, vast territory. It is all yours. It does not belong to a Punjabi or a Sindhi or a Pathan or a Bengali. It is yours. Quaid-e-Azam was equally uncompromising in favor of making Urdu as the only state language of the Pakistan. He was on his sick bed when he learned that an agitation against Urdu was started at Dhaka. Disregarding the medical advice, he went all the way to Dhaka in March 1948 and advised the East Pakistani brethren, let us make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's language shall be Urdu, and anyone who disrupts this unity and misleads you is really an enemy of Pakistan. I must warn you to be aware of the fifth columnist. For official use in the province, the people may choose any language they wish. They can, however, be only one lingua franca, and that language should be Urdu and cannot be any other. The state language, therefore, must obviously be the Urdu, a language that has been nurtured by 100 million Muslims of this subcontinent, a language which is understood throughout the length and breadth of Pakistan, and above all, a language which, more than any provincial language, embodies the best what is in Islamic culture and Muslim traditions and is closest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and the official script of Urdu has been disallowed. The founder of Pakistan had given his final verdict on the controversy of the state language of the Pakistan, but could not live to see his followers and forgotten his valuable advice soon after his death. Quaid-e-Azam was a great champion of minorities. He granted full freedom and equal partnership for the minorities in Pakistan. Addressing the Pakistan Constituent Assembly once said, "You are free to go to your mosque or to any place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the fundamental principles that we all are citizen and equal citizen of one state." Quaid-e-Azam did not live long enough to witness the progress of the state which he had founded. His excessive work soon confined him to the bed. Disregarding medical advice, he devoted much time to his official work, which impaired his health, and after a protracted illness, he died on September 11, 1948 in Karachi. The entire nation was plunged into grief over his passing away at a time when he was needed most. Now, अब हम देखते हैं इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग. इनिशियल यानी कि जो कि बिल्कुल ही स्टार्ट होता है, डिस्प्ले दिखाना, प्रोट्रैक्टेड आप ये कह सकते हैं जितना हम उम्मीद रख रहे थे किसी चीज का उससे ज्यादा तवील हो जाना. सब कॉन्टिनेंट जिसको हम बरे सगीर कहते हैं,
बेनिफैक्टर यानी कि फायदा पहुंचाने वाला, जो कि किसी भी सूरत में हो, पैसे की सूरत में हो, चैरिटी की सूरत में हो। कार्व आउट, बनाना किसी चीज को, वो भी कहते हैं कि बहुत मुश्किल से बनाना। इंटेलेक्ट, जहानत। रिकॉग्नाइज, किसी को पहचानना। फाइनेंशियल, जिसमें आपकी पैसा इन्वॉल्व हो जाए। कंसिडरेबल का मतलब होता है कि आप उसको तवज्जो देते हो, उसको कंसीडर करते हो, वो मतलब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फोरसाइट, दूरंदेशी। सॉलिडेरिटी, एक दूसरे को सपोर्ट करना। अनकॉम्प्रोमाइज, मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है कि इस पे समझौता नहीं होगा। टेरिटरी, एक लैंड, एक इलाका। डिसरिगार्डिंग, जिसको आप कह लें कि आप कम या थोड़ी तवज्जो दें। लिंगुआ फ्रैंका एक ऐसी शेयर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है डिफरेंट रीजन्स में। ऑब्वियसली का मतलब होता है कि वाजिया होना। अब इसी का हम उर्दू तर्जुमा देखते हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासतों में से एक है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिशों का नतीजा है कि उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को मुस्लिम लीग के झंडे तले मुत्तहिद किया और पाकिस्तान की तश्कील की। कायदे आज़म एक बेलौस रहनुमा थे जो अपनी कौम के हकीकी मोहसिन थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अंदर खलूस दिल और आला अकल के नायाब तोहफे समेटे। इनकी शानदार और बहादुर क़यादत को तस्लीम करते हुए मुसलमानों ने इन्हें अपना कायदे आज़म यानी कि अजीम रहनुमा कहा। क़याम पाकिस्तान ने इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां ला दी। पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह के तौर पर इन्हें नौज़ायदा रियासत को शुरू से तमीर करना था। उनकी मजबूत क़ुव्वत इरादी और इंतजामी सलाहियत ने नई रियासत को इस काबिल बनाया कि वो एक साल के कलील अरसे में अपनी इब्तदाई मुश्किलात पर काबू पा सके। पाकिस्तान अपने माली और इंतजामी इस्तेकाम का मुजाहरा किया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के माली इस्तेकाम पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने एक मजबूत माशी पॉलिसी बनाई, पाकिस्तान के लिए एक आज़ाद करेंसी और स्टेट बैंक कायम किया। कायदे आज़म इंतहाई दूरअंदेश रहनुमा थे और वो जान चुके थे कि सूबायत मुल्क की यकजहती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने अपनी कौम को मुतनब्बा किया, क्या तुम उस सबक को भूल गए हो जो हमें 1300 साल पहले सिखाया गया था? हम बंगाली, सिंधी, पठान या पंजाबी हैं, कहने का क्या फायदा? नहीं, हम मुसलमान हैं। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसके लिए आपने एक खिता वसी इलाका बनाया है। ये सब आपका है, ये किसी पंजाबी, सिंधी, पठान या बंगाली का नहीं है, ये आपका है। कायदे आज़म उर्दू को पाकिस्तान की वाहिद रियासती ज़बान बनाने के हक में इतने ही गैर समझौता करने वाले थे। वो अपने बिस्तरे मर्ग पर थे जब उन्हें मालूम हुआ कि ढाका में उर्दू के खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दी गई है। तो तभी मशवरे को नजरअंदाज करते हुए वो मार्च 1948 में ढाका चले गए और जाकर मशरकी पाकिस्तानी भाइयों को मशवरा दिया कि आइए हम आप पर वाज़ा कर दें कि पाकिस्तान की रियासती ज़बान उर्दू होगी और कोई ज़बान नहीं। लिहाजा जहां तक रियासती ज़बान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की ज़बान उर्दू होगी और जो भी इस इत्तेहाद में खलल डालेगा और आपको गुमराह करेगा वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि फिफ्थ कालम निगारों से होशियार रहें। इस सूबे में सरकारी इस्तेमाल के लिए अवाम अपनी मर्जी की ज़बान चुन सकते हैं, ताहम सिर्फ एक ही लिंगुआ फ्रैंका हो सकता है और वो ज़बान उर्दू होनी चाहिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। लिहाजा रियासती ज़बान यकीनन उर्दू होनी चाहिए, एक ऐसी ज़बान जिसकी परवरिश इस बरसगीर के 100 मिलियन मुसलमानों ने की है, एक ऐसी ज़बान जो पाकिस्तान के तौर अर्स में समझी जाती है और सबसे बढ़कर एक ऐसी ज़बान जो किसी भी सूबाई ज़बान से ज्यादा इस्लामी सकाफत और मुस्लिम रवायत में सबसे अच्छी चीज को जाहिर करती है और देगर इस्लामी ममालिक में इस्तेमाल होने वाली ज़बानों के करीब 3 है। ये बेमायनी नहीं है कि उर्दू को हिंदुस्तानी यूनियन से बाहर निकाल दिया गया है और उर्दू के सरकारी रस्मुल खत की इजाजत नहीं दी गई। बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रियासती ज़बान के तनाज़ा पर अपना हतमी फैसला सुना दिया था, लेकिन वो ये देखने के लिए जिंदा ना रह सके कि इनके पैरोकार इनकी वफात के फौरन बाद इनकी कीमती नसीहत को भूल गए थे। कायदे आज़म अजीम थे, उन्होंने पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए मुकम्मल आज़ादी, मसावी शराकत दारी की जमानत दी। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से एक बार खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद है। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब या ज़ात या मुशरिक से हो सकता है। इसका बुनियादी असूलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि हम सब एक रियासत के शहरी और मुसावी शहरी हैं। कायदे आज़म जहाँ दिन तक जिंदा नहीं रह सके, वो इस रियासत की तरक्की का मुशाहिदा कर सकें जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी। तभी मशवरे को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने ज़्यादा वक्त अपने सरकारी काम में लगाया, जिससे उनकी सेहत खराब हो गई और तवील इलालत के बाद 11 सितंबर 1948 को कराची में उनका इंतकाल हो गया। पूरी कौम उनके इंतकाल पर गम में डूबी हुई थी जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।